Hello, dear students. So, this is Tasneem Gul, and I am an English teacher by profession. So, from today onwards, we will start learning some very good and interesting aspects covering the most tough format for the students of class 9th and 10th in English as a subject. Let's first cover and get to the right point of covering Shakespeare as the syllabus. I totally understand because we too have been student once. कि आप स्टोरीज में बहुत अच्छा कर लेते हो, यू डू वेरी वेल इन पोइट्री, बट व्हेन इट कम्स टू शेक्सपियर, so understanding the language, the plot, that becomes a challenge for many of the students. I'm not saying all, because there are students who really scores well in Shakespeare as well. So this entire series of Shakespeare learning will be concerned and specifically would be more beneficial to the students of ICSE of class 9th, students of class 9th and 10th. The purpose of making these series of videos considering all the scenes and acts of the present running Shakespeare novel for 9th and 10th, that is Julius Caesar, is that we have clearly witnessed that there are a lot of students who do really well. 60-70% बच्चे को easily समझ में आ जाती है, बट असली प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंडिंग में टू दोज 30-40% क्राउड. और कई बार बाकी बच्चों के साथ भी इश्यूज आता है कि आप समझ लेते हो, एक्सट्रैक्ट्स अज्यूम कर लेते हो, यू राइट वेरी वेल, बट पूरी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्लियर नहीं होती है. तो डेफिनेटली माई दिस सीरीज ऑफ वीडियोज विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी मिक्स रहेगा. रीजन बीइंग कि आई डोंट वांट कि मैं आपको सिर्फ बुक की चीजें बताऊं. आई रियली विश कि यू लर्न समथिंग इन द प्रोसेस. आपको कभी भी कोई डाउट आ रहा है इन एनी ऑफ द रिस्पेक्टिव वीडियो कंसिडरिंग एनी ऑफ द सीन, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो योर डाउट्स. वी विल लव टू क्लियर, वी वुड लव टू क्लियर योर डाउट्स देन एंड देयर. So, starting up with Julius and Caesar, as you all know that Shakespeare has all its novels and drama based on different areas. Like sometimes it's a love drama, sometimes it is comedy based, a humor based, and many a times it is historical and tragedy based. So this particular drama, which is Julius and Caesar, it is entirely based on a history, obviously, and a tragedy. So Shakespeare's Julius Caesar is a history play and tragedy set in Rome and was first performed in 1599 in Globe Theatre in London. So this idea and this drama belongs to the entire portion of London. This has been performed there, and it's an entire the plot is based on Rome, and the protagonist is definitely none other but Julius Caesar. So the play is about the events surrounding the 44 BC assassination of Julius Caesar. किस तरीके से जूलियस सीजर जब वो विन करते हैं, ही होल्ड्स अपॉन द पावर, और फिर उसके बाद किस तरीके से उनको असैसिनेट किया जाता है, उनका मर्डर होता है ड्यूरिंग द ड्रामा, एंड उसके क्या रिपरकशन होते हैं, ये सारी चीजें इस ड्रामा में डिस्कस की गई हैं. अ रोमन जनरल एंड स्टेट्समैन, he was never actually emperor. He ruled while Rome was still a republic, though he had all the powers to match any emperor. See, there are a lot to discuss about this drama, and definitely we will cover those in the next videos. Like I'll introduce you all with one of the video which would be the theme of the play, which would be the synopsis of the play, at the same time the characterization of different plots, characterization of different characters of the same play. But अभी जो हमारा मेजर डिस्कशन होगा वो एक्ट्स पे होगा और उनके सीन के एक्सप्लेनेशन पे होगा, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग देयर एग्जाम्स एंड टेस्ट अराउंड द कॉर्नर. सो आई रियली वुड वांट कि दिस विल हेल्प दोज स्टूडेंट्स इन नीड. सो टॉकिंग अबाउट एक्ट 1 सीन 1.
सबसे पहले तो हमेशा याद रखो कि जब आप कोई भी एक्ट बना रहे हो, शेक्सपियर पढ़ने का बहुत क्लियर लॉजिक है। इन योर प्रैक्टिस कॉपी आपने एक्ट 1 सीन 1 लिख लिया, फर्स्ट राइट डाउन द कैरेक्टर्स जैसे आपके बुक में लिखा हुआ होता है। सो व्हेन यू राइट इट डाउन आपको बहुत क्लियर हो जाता है, और जब उस एक्ट से आपको कोई भी एक्सट्रैक्ट आती है तो आपको पता होता है कि उसमें कौन कौन कैरेक्टर है। सो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। नाउ इन एक्ट 1 सीन 1 वी हैव द एंट्री ऑफ फ्लेवियस, मारुलस एंड सम other citizens. Okay, the entry of these 3 people, but already वहां पे 2 कैरेक्टर रहते हैं, and those are first citizen, second citizen आपके एक्ट में रेफर हुए हैं, but they are actually carpenter and a cobbler. Okay, now what is the first scene about? सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग स्ट्रीट डिस्क्रिप्शन, आपको पता होगा शेक्सपियर का जो भी ड्रामा होता है वो किस तरीके से परफॉर्म होता था कि वो एक स्टेज होती थी, ओपन स्टेज, जैसे आप अभी भी देखते होगे ऐसे बहुत सारे न्यू ड्रामा प्लेज होते हैं जगहों पर। तो ड्रामा होती थी एंड देन वहाँ पे एक्टर्स जो भी सीन में रोल प्ले कर रहे हैं वो रोल प्ले करते थे, एंड देन दैट्स बीन रिटन बाय मेनी ऑफ द राइटर्स ओवर देयर, ठीक है, जर्नल्स। तो उस हिसाब से वो प्ले परफॉर्म होता था। सबसे पहला जो सीन 1 है आपका, सो द सीन इज सेट इन रोम. The working people have given themselves a day's holiday in order to celebrate Caesar's latest victory and to welcome him home. नाउ यहाँ पे रेफरेंस क्या लिया गया है सीन 1 का कि द सीन इज सेट इन स्ट्रीट इन रोम, यानी कि ये सीन कहाँ पे हो रहा है, रोम के एक सड़क पे हो रहा है। यहाँ पे जितने भी वर्किंग पीपल हैं उन्होंने खुद से खुद को एक दिन की छुट्टी दी हुई होती है टू सेलिब्रेट सीजर्स लेटेस्ट विक्ट्री, यानी सीजर का जो सबसे लेटेस्ट विक्ट्री रहता है उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, दैट इज ही हैज वन रोम वंस अगेन। यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है टू वेलकम हिम होम। ओके, नाउ कि फिर से उसे घर बुलाने की, हम लोग बोलते हैं ना कोई अगर एक बार जीत जा रहा है, राइट, एंड अगेन आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि या अगेन आप जीत गए, तो वी कॉल इट के वेलकम बैक टू योर होम. The tribunes, Flavius and Marullus, supporters of Caesar's old rival Pompey. यानी कि यहाँ पे जो फ्लेवियस और मारुलस एंट्री करेंगे, ये हैं कौन? ये सीजर के ओपोनेंट पॉम्पी के फ्रेंड्स हैं. ओके, इनका एक ओल्ड राइवल था पॉम्पी. अभी प्रेजेंट राइवल की बात नहीं हो रही है, उसके बारे हम लोग कमिंग सीन में डिस्कस करेंगे. ओल्ड राइवल था, एक ओल्ड ओपोनेंट था एंड ही वाज पॉम्पी, और उसके फ्रेंड्स या उसके फॉलोअर्स आप बोल सकते हो थे फ्लेवियस और मारुलस. सो ऑब्वियसली उनको एक एनवी रहेगी विथ जूलियस. So here what happens is that those tribunes, the Flavius and Marullus, what they were trying to do is they were trying to drive the people away, telling them that they have forgotten Pompey and to remember his greatness. Because यहाँ पे जूलियस सीजर जीत जाता है एंड लोग उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फ्लेवियस एंड मारुलस के जो तुम्हारा ओल्ड किंग था या ओल्ड थे पॉम्पी, आपने उनकी जितनी भी ग्रेटनेस थी या उन्होंने तुम्हारे साथ जितना अच्छा किया, तुम लोग उस चीज को भूल गए, और जूलियस यानी कि जो उसका ओपोनेंट था, तुम लोग आज उसका विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो. सो इट इज अ ग्रेट पब्लिक फीस्ट डे, बट द ट्रिब्यून्स आर determined to remove the decorations from the statues of Caesars that they find decorating the images of the gods. The tribunes are officers elected by the people to protect their liberties against the Senate and consuls. They are afraid and that Caesar is becoming too powerful. So Flavius और Marullus जो थे वो इंस्ट्रक्ट कर देते हैं जितने भी लोग रहते हैं कि जहाँ पे भी आपको डेकोरेशन दिख रहा है आप उनको रिमूव कर दो, सो दैट के और लोग जूलियस सीजर को सेलिब्रेट नहीं करें, उनके बारे नहीं जाने, सो दैट कि वो और ज्यादा पावरफुल नहीं बन जाए. सो दिस वाज द बेसिक आइडिया, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं दे वर एनवी अबाउट दैट. ओके, so let's begin with Act 1, Scene 1, and here we have the entry of Flavius, and here he says, "Hence home, you idle creatures, get you home." What does he says here? कि here home, why are you here, you idle creatures? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? idle creatures यानी कि तुम्हें कोई काम वाम नहीं है, तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो, तो तुम लोग घर चले जाओ. Is this a holiday? क्या आज कोई हॉलीडे है? What know you not?
being mechanical. You ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या आज कोई हॉलीडे है? अगर नहीं है तो तुम लोगों को पता है, बोला है कि हॉलीडे है क्या जो तुम लोग इस तरीके से घूम रहे हो. एट द सेम टाइम ही सेज कि और तुम्हें पता नहीं है कि तुम लोग स्ट्रीट में ऐसे बिना अपने यूनिफॉर्म और बैजेस के नहीं घूम सकते हो. दिस इज नॉट अलाउड. Then he asks at end, speak what trade are thou? That is, किस बिजनेस को तुम बिलोंग करते हो, क्या बिजनेस तुम करते हो, what is your profession? Okay, so first citizen here then replies with, why sir, a carpenter? That is, he says that, well sir, I am a carpenter. मैं by profession एक carpenter हूँ. फिर मारुलिस इंटरवीन करता है और पूछता है, वेयर इज दाई लेदर एप्रन एंड दाई रूल? व्हाट डज ही सेज, व्हाट डज ही आस्क कि आपका लेदर एप्रन यानी जो आपका यूनिफॉर्म है, वेयर इज योर यूनिफॉर्म, और वो रूल यानी कि यहाँ पे रूलर से डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि कारपेंटर्स का अपना, हर एक प्रोफेशन में सब लोगों का अपना एक मैकेनिज्म मशीनरी होती है. तो यहाँ पे कारपेंटर क्या होता है, एक रूलर लेके घूमता है डेफिनेटली. तो ही इज आस्किंग कि तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है, तुम्हारा रूलर कहाँ है. व्हाट डोस्ट दाउ with thy best apparel on? और ऐसी कौन सी खुशी है जिसमें तुम लोग इतना सज धज के घूम रहे हो, that you are wearing your best clothes all in all. You sir, what trade are you? फिर ये क्या करता है, मारुलिस देन पूछता है सेकेंड सिटीजन को. नाउ हियर द कॉन्वर्सेशन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सेकेंड सिटीजन जो रहता है वो बहुत ही सरकास्टिक रहता है. वो एक बात का आंसर तो सीधे करेगा बट उसका मीनिंग हमेशा दूसरा निकलेगा. सो ये सेकेंड सिटीजन से पूछता है कि व्हाट ट्रेड आर यू, यानी कि तुम क्या बिजनेस करते हो. सेकेंड सिटीजन देन रिप्लाई, truly sir, in respect of a fine workman, I am but, as you would say, a cobbler. Second citizen क्या बोलता है कि truly sir, in respect of a fine workman, यानी कि मेरा जो बिजनेस है, I am but, as you would say, a cobbler. That is कि well sir, as far as I may be concerned, a fine workman, यानी कि वो बोल रहे हैं कि जहां तक मेरी बात हो रही है, मैं एक बहुत अच्छा वर्कमैन हूँ. I am but, as one might say, a mender of shoes. बट यहाँ पे वो डायरेक्ट अपने प्रोफेशन को बताने के बजाय क्या बोलता है कि I am a mender of shoes, यानी मैं जूतों को सही करता हूँ, उनको ठिकाने लगाता हूँ. This is what he exactly want to say to him. Okay. Now Marullus asks, but what trade art thou? Answer me directly. यानी कि ही इज आस्किंग कि एग्जैक्टली तुम क्या करते हो, मुझे वो बताओ. व्हाट इज योर करेक्ट प्रोफेशन, व्हाट इज योर ट्रू बिजनेस. यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बात घुमा रहा है. देन सेकेंड सिटीजन रिप्लाइज, अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ conscience, which is indeed so, a mender of bad souls. What does he says here? That a trade which a man may use with a clear conscience. What he says कि एक ऐसा बिजनेस करता हूं मैं कि लोग जिसको क्लियर कंसाइन से करे और यूज करे, विच इज टेक्निकली अ मेंडर ऑफ सोल्स. यहाँ पे उसने पन क्रिएट किया है. यहाँ पे ये बोल रहा है अ मेंडर ऑफ सोल्स. सोल्स यहाँ पे रेफर कर रहे हैं SOLES को. दिस सोल इज अ सोल ऑफ अ शू, बट वो एक्चुअली उसको बताना क्या चाह रहा है कि आई एम अ मेंडर ऑफ सोल्स, विच इज SOULS, यानी कि किसी इंसान के सोल की बात वो उसको दिखा ये रहा है, बट वो अपने रेफर कर रहा है कि शूज की बात कर रहा है और सोल को ठीक करता हूं. बट वो उसको यही बिलीव करवाना चाह रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट SOULS सोल्स, जिसकी वजह से मारुलस को आगे जाके थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा. सो अगेन मारुलस आस्क, व्हाट ट्रेड thou knave, that naughty knave, what trade? अब यहाँ पे मारुलस को गुस्सा आ जाता है और पूछता है, बार बार पूछता है कि but what is your trade exactly, what do you do? So then he asks again, you worthless fellow, I want to know what is your trade, answer me at once. क्योंकि वो उसकी बातों को घुमा रहा था, तो उससे डायरेक्टली पूछता है कि exactly तुम क्या करते हो, मुझे वो बताओ. Then second citizen replied
that nay, I beseech you, sir, be not out with me yet. If you be out, sir, I can mend you. What does he says here? Now I beg of you, sir, do not be angry with me. Clearly बोलता है कि अब हम आपके आगे बेग कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि आप मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए. Still if you do, but अगर तब पर भी आप गुस्सा करते हो तो आई कैन इजीली मेंड यू, यानी फिर मुझे आपको भी सही करना आता है और मैं आपको भी सही कर दूंगा. इन अदर वर्ड्स ही मीन्स टू से दैट ही कैन improve your character and this is the best way in which Marullus understands it. इनडायरेक्टली उसको क्या बोल रहा है कि अगर तब पर भी आप नहीं मानते और कंटिन्यूअसली मुझे बेइज्जती करते रहते हो और आप यू विल नॉट स्टॉप हियर, सो फिर मुझे पता है कि आपको भी कैसे सही करना है. ओके, नाउ अगेन Marullus was very angry now and he says, what meanst thou by that? Mend me, thou saucy fellow. अब इसको गुस्सा आ जाता है कि कोई एक लेबर ग्रेड इंसान उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है. And then he asked, what do you mean by mend me, you innocent fellow? So insolent fellow, that is कि वो बोल रहा है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो, बदतमीजी कर सकते हो. Then second citizen replied, why sir, कॉबल यू, यानी कि यहाँ पे उसका प्रोफेशन क्या है, कॉबलर है. तो यहाँ पे अब वो क्या करता है, बात बना देता है, बोलता है कि वाई सर रिपेयर योर शूज, यानी कि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि वो ये दिखा रहा है कि क्यों आप गुस्सा हो रहे हो, मैंने आपको थोड़ी ठीक करने के लिए बोला, मैंने बोला है कि मैं आपके शूज को ठीक कर दूंगा, आपके शूज को सही कर दूंगा, सो इसमें आप गुस्सा क्यों हो रहे हो. सो नाउ ही प्लेज वेरी स्मार्टली हियर. ओके, देन ही आस्क फ्लेवियस, that art a cobbler, art you, art thou. So Flavius says, now Flavius intervenes क्योंकि वो देख रहा है कि मारुलस और एक लेबर ग्रेड इंसान के बीच में झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है and which is coming to no point. And Flavius then guesses and comes to the point and asks, okay, so do you mean that you are a cobbler? Okay, so फिर वो second person से पूछता है कि do you mean that you are a cobbler by profession?